सभी को सादर प्रणाम. Good evening, everyone, and welcome to this study session of Mahatma Letters organized by the Indian section. And before we start the proceedings, let us start our session with the universal prayer. O hidden life, vibrant in every atom, O hidden light, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness, may all उसको who लगा दो, ये माइक से मतलब नहीं है, as one with thee, ये स्पीकर है खाली. they are therefore one with every other. Namaste again, and now we could hear you, Gautam ji. You can unmute now. नहीं, अब now again we cannot hear you, sir. अभी आपकी आवाज आई थी थोड़ी देर को जब आप कह रहे थे स्पीकर हटाओ, but then we lost your audio. So, good evening, everyone. And today, as you are aware, that we are going to study the Mahatma letter number 57 in this sequence that we have been studying. And to present that session, we have with us Brother Shyam Singh Gautamji from Kanpur. And he is a very, very old, earlier, he became a member of Theosophical Society long back in 1975. That is after 100 years of foundation of the Theosophical Society. And he retired as the director of the industrial hygiene and in charge of major hazard and chemical safety division and environmental engineering division of Central Labor Institute from Mumbai on 30th June 2010. And he did his postgraduate in chemistry from Kanpur University in 1971 and started his career as a scientist in National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur in 1971, where he worked in the field of water pollution surveillance and solid waste management. And he has worked in the Ministry of Labor in at various levels since 1974. And he is the author of more than 300 technical reports and papers published, delivered, or submitted to respective agencies. He is the secretary of the Indian Society of Industrial Hygiene, and he currently is providing the advisory services to industries in the field of safety audits, hazardous operation studies, dispersion modeling, industrial hygiene, industrial ventilation, etc., and conducting training programs on these fields. And he became a member of Theosophical Society in 1975 from Adyar, where he was posted and he was living just next to the campus of Theosophical Society. He remained member of Adyar Lodge, Chennai, and Chauhan Lodge, Kanpur, and Blavatsky Lodge, Mumbai. Currently, he is the president of Chauhan Lodge, Kanpur, also the national lecturer of Indian section of Theosophical Society. And one very important thing he is regularly doing on a monthly basis is translating the Indian Theosophist into Hindi language. That is a very big contribution of his, so that the Indian Theosophist is available for reading for the people who wanted to read it in Hindi. So with this introduction, I invite Brother Shyam Singh Gautamji to share this letter with us. Gautamji. Can you hear me, sir? Yes, now I can hear you, sir. Okay, just a minute. I will set it in my PowerPoint. If you want, I can share the screen for you, the PPT. Please enable the screen sharing. Okay.
Try now, sir. Are you able to share now, sir? Okay. Gentlemen, good morning, good evening, everybody. Can you hear me, Shikhar? Shikhar, Yes, can you hear me? yes, yes, sir. We can hear you loud and clear. Okay, then I will start. On last Friday, I have I had given the first part of this letter, and now I am starting the second part. And to continue the link, I am going with the last slide, which I have already presented last time, so that there is a continuity in the talk. अभी हम I don't know, I am going to speak in Hindi. So It's okay. It's my okay, sir. It's presentation is okay. also in Hindi. It's okay, sir. So I think you will be able to follow me. If there is any problem, please ask your question in English. I will answer. I was taking. He is writing he is writing to Mr. Senate, the Mahatma, uh, about Mr. Hume, and he told that he not only read my letter, which was written to Mr. Fern, and he also wrote to Mr. Alcott, and he tells that his height is nowhere comparable with that of Mr. Alcott, and उन्होंने मिस्टर अल्कॉट ने उनको एक ऐसी ऐसी स्थिति में फंसा दिया कि ही वॉज लेफ्ट विद नो आंसर ऑलमोस्ट. उन्होंने कहा कि मास्टर मौर्य ने हमारे लेटर को चुराया है मास्टर एम से, और ही हैज सेंट द लेटर टू मिस्टर फर्न. सो ही टेल्स दैट आपने तो भी चुराया है इंफॉर्मेशन फर्म के लेटर से. तो जब वे पकड़े गए और कॉर्नर किए गए, तो उन्होंने एक बहुत ही लो लेवल का झूठ बोला, और वे बताने जा रहे हैं कि मैं इस व्याख्या से आपको अवगत कराने जा रहा हूं. एक्चुअली ही इज राइटिंग दिस लेटर टू मिस्टर एपी सिनेट with a fear that he may misunderstand him, and he thinks that master is involving in such a low type of work. जब वे पकड़े गए और कॉर्नर किए गए, तो उन्होंने एक निम्न कोटि के झूठ का सहारा लिया. मैं इस व्याख्या से आपको अवगत कराने जा रहा हूं कि किसी के प्राइवेट पत्र से जो तुम्हारी आंखों के लिए न हो, कोई भाग एक्सट्रैक्ट कर लेना जो कॉन्फिडेंशियल से कहीं बढ़कर हो, और फिर भी मिस्टर ह्यूम के एड्रेसी से प्रार्थना करते हैं कि उस पत्र के सारे थियोसॉफिस्ट को पढ़ाया जाए. जब उन्होंने ह्यूम में लिखा था वो पत्र, तो उन्होंने कहा था कि मैं आपको ये पत्र भेज रहा हूँ, एंड लेट दिस बी रेड बाय ऑल द थियोसॉफिस्ट देयर, so that they know that what master has written to me. मैं आशा करता हूं कि मैं तुम्हारे द्वारा अनजेंटलमैनली इंस्टिंक्ट के लिए दोषी न पाया जाऊं. दिस इज व्हाट इज ही इज अपोलोजाइजिंग to Mr. Sinnott that he is compelled to do what he is doing,
because he wanted to make him aware about the things. ऐसा कोई व्यक्ति जो, एक मिनट, ऐसा कोई व्यक्ति जो यूनिवर्सली जेंटलमैन के रूप में जाना जाता है किंतु निम्न कोटि का दुष्ट होता है, वह प्रत्येक अन्य व्यक्ति के लिए बाहर से जेंटलमैनली है किंतु अपनी विलेन आत्मा को छुपा कर रखता है। उन्हें जैसा अच्छा लगे वैसे प्रकाश में मुझको देखें। ये एक्सट्रैक्ट मैं आपको भेज रहा हूं क्योंकि तुम्हें उनकी सच्ची प्रकृति से सावधान रखने के लिए मुझे अत्यंत आवश्यक लगा। वे इस समय लंदन में के थियोसॉफिस्ट को और सदस्य बनने के लिए प्रत्याशियों को पत्र लिखने में व्यस्त हैं। एक खास उद्देश्य है कि वे पश्चिम के सारे मिस्टिकों को उनके विरोध में खड़ा कर सकें जो एक नास्तिक, मिथ्याचारी और जादूगरों का बंधुत्व है। These are all the words which Mr. Hume has mentioned in his letter to Mr. Sinnett, Mr. Alcott. Alcott को उन्होंने कहा है कि ये जो मास्टर केएस हैं वो एक नास्तिक हैं, एथिस्ट, and he is a hypocrite, and also he is member of a brotherhood of the sorcerist. So all these things he has written, and this he has written to London also, to Mr. C.C. Massey, and told him to tell it to all the people in there, all these things. ये किसी sorry, it is hiding. ये आपको किसी संभावित घटना या तुम्हारे मित्र और हमारे शुभ चिंतक द्वारा दी गई शरारत की परिस्थिति में सहायता करेंगे। तुम्हारे मित्र और हमारे शुभ चिंतक जो वर्ड यूज किया है, दैट इज योर फ्रेंड एंड वेल विशर ऑफ मी, इट इज रिटन विद सरकास्ट टू मिस्टर ह्यूम, जो मेरे बंधु मेरे मित्र से कहीं अधिक हैं, उनसे मेरे प्रति आरोप लगाते समय एक चोर, कायर, झूठा और मूर्खता का अवतार, ऐसा ये सारे वर्ड जो हैं मास्टर केएस के बारे में मिस्टर ह्यूम ने लिखे हैं। और किसको लिखे हैं? मिस्टर आलकाट को, जो मेरे बंधु मेरे मित्र से कहीं अधिक हैं, उनसे मेरे प्रति आरोप लगाते समय उन्होंने एक चोर, कायर, झूठा और मूर्खता का अवतार जैसी दयापूर्ण तारीफों से मेरा तिरस्कार करेगा। वे सोचते हैं कि मैं इतना दगाबाज हूं कि ये सब आत्मसात कर लूंगा और इतना मूर्ख हूं कि उनके मूल्य की माप नहीं कर पाऊंगा। याद रखो, एक्चुअली प्रॉब्लम आ रही है, इट इज सर आप फुल स्क्रीन कर लीजिए, नीचे जो प्रेजेंटेशन है वो 61%। याद रखो कि एक ऐसे द्वंद्ववादी मित्र से सावधान रहना चाहिए जो अपनी शर्ट के नीचे कवच पहनकर रखता हो। He is hiding an armor under his shirt. That's what he is telling. उनसे उनके अच्छे कार्य बहुत अच्छे हैं, बहुत हैं, बुरे उससे कहीं अधिक हैं। पहले वाले अधिकांशतः नियंत्रित और उनके असंगत आत्मप्रेम और लड़ाकूपन के कारण बढ़ गए हैं, और यदि अभी भी सुनिश्चित नहीं हुआ तो ये अंतिम रूप से उस संवेग में बदल जाएगा जिसका परिणाम उनका अगला जन्म होगा। He tells that if it is not decided now and he is allowed to go further,
then ultimately it will convert into an impulse that will have its results in the next birth. हम किसी सीमा तक पूर्णता से भविष्य बता सकते हैं कि वे कभी अडेप्ट नहीं बन पाएंगे और न भविष्य के किसी जन्म में. He declares, Master, that it is impossible for him to become an adept either in this birth or in any other birth in future. उनकी आध्यात्मिक आकांक्षा ने इस जन्म में अपने विकास का पूरा चांस प्राप्त कर लिया है. Whatever is possible for him, maximum possible for him, that he has already got the opportunity in this birth. उनका टेस्ट किया गया है जैसे सभी का टेस्ट लिया जाता है. बेचारे एक पतंगे की भांति जो रोथनी कैसिल, एक्चुअली रोथनी कैसिल जो उनका टेस्ट लिया गया है जैसा सभी का टेस्ट लिया जाता है. बेचारे एक पतंगे की भांति जो रोथनी कैसिल, शिमला में मिस्टर ह्यूम का जो हेरिटेज महल है उसका नाम है रोथनी कैसिल. तो ही सेज दैट एक पतंगे की भांति रोथनी कैसिल और उसके साथियों की मोमबत्ती में झुलस गया है, किंतु आत्मा और केवल आत्मा की विजय हुई है. बिकॉज इट इज ए लेसन टू आत्मा. उनकी मस्तिष्क की दृष्टि ने उनको अपने लिए सदा से एक चित्र पेंट किया है जो मानवता के पुनरुत्पादक का था, जो बंधुत्व के स्थान पर था और उसका मूर्खता और जादुई कार्यों को वे समझ गए हैं. उन्होंने ही टेल दैट व्हाट ही इज एरेजिंग, व्हाट ही इज blaming the master chaos to be, that is a foolish and magical work that he has understood me. ये नया अवतार अल्मोड़ा में नहीं, जक्को actually there is a temple, Jakko temple in Shimla which is close to the house of Mr. Hume. तो इस ऐसे ये नया अवतार अल्मोड़ा में नहीं, अल्मोड़ा एक्चुअली एक जगह है where he claimed in his letter, Mr. Hume, in one of the letters, that he has found another guru who has promised him to make him a master very quickly. So I will just take the training from him. So what he says that ये नया अवतार अल्मोड़ा में नहीं, जक्को में है. और इस प्रकार वह दानव है, वैनिटी, जिसने दयानंद को बर्बाद किया है और जो हमारे कंडम मित्र को बर्बाद कर रहा है. दिस इज व्हाट ही हैज रिटन टू मिस्टर ऑलकॉट, दैट इट इज द मास्टर KH हु हैज स्पॉइल्ड स्वामी दयानंद एंड नाउ ही इज प्लानिंग टू स्पॉइल यू. और हम पर और TS पर आक्रमण करने के लिए उनको तैयार कर रहे हैं जो स्वामी से कहीं अधिक असभ्य है. फिर भी भविष्य अपनी देखभाल कर लेगा. मैं उपयुक्त साक्ष्य तुमको देकर केवल तुमको परेशान कर रहा हूँ. आई एम जस्ट ट्रबलिंग यू बाय गिविंग यू दी एबव एविडेंसेस. अब तुम जान पाओगे कि संयोग से मैं उनकी असत्यपूर्ण और कनिंग प्रकृति के बारे में पिछले अक्टूबर से ने ये सारे साक्ष्य एकत्रित करने के लिए क्यों विवश हुआ. मेरे मित्र, कुछ भी यहाँ तक कि ये देखने में अनर्गल और निंदापूर्ण काम हमें बिना उद्देश्य के करने पड़े. 1 दिसंबर को मिस्टर ह्यूम ने कर्नल ऑलकॉट को एक पत्र में हमारे बारे में लिखा है. और क्या लिखा है उसका कुछ अंश है यहाँ पे. मुझे KH के साथ भाइयों की भांति निष्ठापूर्ण स्नेह है और हमेशा रहेगा. और जहाँ तक औरों का प्रश्न है, मुझको संदेह नहीं है कि वे लोग बहुत अच्छे लोग हैं और अपने अपने प्रकाश के अनुसार कार्य कर रहे हैं, किंतु उनके सिस्टम के प्रति हम वास्तव में पूरी तरह उनके विरुद्ध हैं. किंतु इसका
टीएस के बाहरी व्यवहारिक उद्देश्यों से कोई लेना देना नहीं है और उसको आगे बढ़ाने के में मैं हृदय से और प्रसन्नता से आपके अच्छे बंधुओं से कोऑपरेट करूंगा। आगे 8 दिन पहले, that is on the 22nd November, he wrote to Mr. P. Srinivas Rao, who was a judge in SCC Madras. उनको एक चिट्ठी लिखी है और उनको क्या लिखा है, मैंने पाया है कि बंधुत्व बुरे और स्वार्थी व्यक्तियों का एक संगठन है। ब्रदरहुड मीन्स द ग्रुप ऑफ मास्टर्स। मैंने पाया है, आई हैव फाउंड दैट दिस ब्रदरहुड इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सर्टन सेल्फिश पीपल, एंड एक संगठन के रूप में किसी की देखभाल नहीं कर सकते हैं, हेलो गौतम जी, बल्कि वे अपनी गौतम ही जी, गौतम आध्यात्मिक जी, विकास, कैन यू हियर मी? दे आर वरीड ओनली अबाउट देयर ओन गौतम जी, कैन यू हियर मी? और माइंड, हेलो ही टेल्स अबाउट द माइंड। गौतम इस जी, संबंध में केएच गौतम जी, एक्सेप्शनल हैं और मेरा ये विश्वास है कि वे केवल एक ही हैं जिसके लिए वे पिशाच या प्रेत रखते हैं, जो उनके चमत्कारों को रूप देने में उनका सहयोग करता है। व्हाट इज टेल्स दैट द केएच इज his organization is a system of bluffing, and he is very much trained in the magic, and whatever the miracles he is exhibiting, for that he is keeping certain spirits as his servants, and they do things for him. जहां तक धोखा देने की बात है, एक बार कोई उनका चेला बन जाए और उनके द्वारा दी गई शर्तों से बन जाए तो वे जो कहते हैं उनके एक शब्द पर आप विश्वास नहीं कर सकेंगे। वे विधिवत झूठ बोलते हैं जादूगरी के बारे में। सोमकप्पा के समय तक वे अनियंत्रित बुरे जादूगर थे। प्रत्येक चेला एक गुलाम होता था। हेलो गौतम जी, कैन यू हियर मी? प्रत्येक चेला एक गुलाम होता था। उनके द्वारा दी गई शर्तों से बन जाए तो वे कहते हैं, उसके बाद उनके बाद शब्द पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। वे विधिवत झूठ बोलते हैं जादूगरी के बारे में। सोमकप्पा के समय तक वे अनियंत्रित बुरे जादूगर थे। प्रत्येक चेला एक गुलाम होता है। एक बहुत बुरी प्रकार का गुलाम, विचारों, शब्दों और कार्यों में दिखावा। हमारी सोसाइटी एक महान स्थापना जो एक बाहरी प्रदर्शन है, किंतु युगों की चट्टान पर बनी नहीं है, बल्कि खिसकती हुई नास्तिकता की रेत से बनी है। सफेदी की हुई कब्रें हैं जो चमक रही हैं। धोखे और हानिकारक क्रिश्चियन हड्डियों से पूर्ण। आप स्वतः हैं जान सकते हैं। मेरे इस पत्र को सोसाइटी में जैसे चाहें वैसे प्रयोग करें। He is writing to a judge to do something about the society which has been sponsored या initiated by KH. उसी महीने की 9वीं तारीख को उन्होंने मिस्टर आलकार्ड को लिखा था, बंधुत्व के अभिव्यक्त स्वार्थपरता पूरी तरह से उनके आध्यात्मिक विकास के कारण है। दिसंबर 8 सितंबर
8 सितंबर को 12 चेलाओं को लिखे गए एक पत्र में, वही जिनका रेफरेंस जज श्रीनिवास राव को 22 नवंबर को लिखे गए पत्र में दिया गया है, उनके ऊपर बताए गए डिप्लोमेटिक पत्र एक झूठे और बंधक गुलाम की तरह एक उत्तेजित करने वाला स्पष्ट उत्तर प्राप्त करने के बाद उन्होंने कहा, जैसा तुम जानते हो, उनको किसी यूरोपियन से ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए थी कि वो लाइनों के बीच में जो है उसे पढ़ ले। एक HX पत्रों में, HX एक्चुअली there is somebody whose name is HX, and I have tried to find out in the old diary leaves also. I did not find this particular word HX. So if there is someone who knows about HX, please tell me. Somehow I assume that HX must be the initials of some of his chelas who are living in the valley of Tibet, along with Damodar and all that. HX पत्रों में इस प्लाट पर द थियोसॉफिस्ट में, किंतु एक ब्राह्मण सूक्ष्म माइंड संसार में सामान्य ब्राह्मण नहीं है, किंतु सर्वोच्च और महानतम प्रशिक्षण प्राप्त आदि। उन्होंने ब्राह्मण वर्ड इन्हीं के लिए यूज किया है, मास्टर केएस के लिए। वे सुनिश्चित होकर आराम से हैं कि मैं कभी नहीं कहूँगा या कुछ करूँगा जो बंधुओं, सोसाइटी और उनके सारे उद्देश्यों के हित में नहीं है। इस प्रकार यह लगता है कि इंद्रजाल और बेईमानी एशियाटिक अडप्टों का एडवांटेज है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द लेटर बाय मिस्टर ऑलकॉट। उसी पत्र में, यदि आपको याद हो, तो वे जोड़ते हैं, यह सबसे अधिक प्रभावशाली हथियार उन नमक हरामों के अपने घर में है, फिर भी उन्हें मूर्ख बनाते हैं, और कि वे वास्तव में आशा करते हैं। इस पत्र को द थियोसॉफिस्ट ने लिखकर अपनी प्री ओल्ड लेडी को इसमें लेने की कोशिश की है, किंतु उनको अपने जाल में नहीं ले पाए आदि। इस सारी कनिंग और डिप्लोमेसी के साथ लगता है वे अपनी स्मृति खो बैठे हैं। न केवल वे अपने प्लॉट में डियर ओल्ड लेडी को नहीं ले पाए हैं, डियर ओल्ड लेडी यहाँ पे मैडम ब्लवस्की के लिए यूज किया गया है, वे केवल अपने प्लॉट में डियर ओल्ड लेडी को नहीं ले पाए हैं। एक लंबे प्राइवेट पत्र में उनको यह कहने के कुछ घंटों बाद उनके बारे में लिखा है, प्रभावशाली हथियार, इफेक्टिव वेपन, जिसे प्रकाशित करने के लिए HPB के द्वारा उन्हें लिखा गया है, जिसे तुमने शिमला में वापस आने के लिए पैकिंग करते समय खो दिया है। यही टॉकिंग टू Mr. Sinnett that HPB has sent that letter to Mr. Sinnett, but somehow he has missed that letter. किंतु वे गए हैं पत्र के पीछे कुछ व्याख्या के शब्द लिखे हैं। ये पत्र की भी अन्य पांडुलिपियों के साथ दामोदर के पास सुरक्षित है। नोट इस प्रकार है, कृपा करके इसे सावधानी पूर्वक और बिना कोई परिवर्तन किए प्रिंट कर दें। यह डेविडसन और अन्य पत्रों का प्रशंसा पूर्वक होम से उत्तर देता है। इन पत्रों से लिए गए एक्सट्रैक्ट्स उनकी मैन्युस्क्रिप्ट में संलग्न थे। तो ये पत्र उन्होंने एज ए लेटर टू एडिटर लिखा था फॉर पब्लिशिंग इन द थियोसॉफिस्ट। हमें डर है कि हम बहुत समय तक सहारा नहीं दे सकते हैं, किंतु इस प्रकार के संकेतों को आने से रोक सकते हैं। एक्चुअली he has imposed to Mr. Olcott that he is also like masters who knows everything what is happening around, and he says that he is afraid that he cannot help him for a long time, but
If there are any indications which are bad to you, I will indicate to you. इस प्रकार उनके स्वयं के सर्वाधिक प्रभावशाली अस्त्र ढाल लेने के बाद घर के नमक हरामों को बदलने के लिए हमारे वास्तविक अस्तित्व के बारे में और अभी तक मना करने में असमर्थ, उसमें निहित संकेतों से पूरी और सुनिश्चित जादूगरी के चार्ज से अच्छा एंटीडोट और क्या हो सकता है आदि। अब उन्होंने आगे लिखा है, जब उनको लिखे गए पत्रों के उत्तर में 12 चेलों के संयुक्त उत्तर में डियर ओल्ड लेडी के बारे में जानबूझकर सच्चाइयों को झूठा सिद्ध करने का प्रयास करने का आरोप लगाया, उसके बावजूद भी उन्होंने सुब्बा राव को लिखे गए एक पत्र में उसका विलोम कहा है। उनको भी प्लॉट में सम्मिलित कर लिया है और सुब्बा राव को लिखा है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और यह उनका मैडम को लिखा गया पत्र उनके क्यों का उत्तर है और उस पत्र के पीछे निहित कारणों, क्योंकि उनका पत्र एचएक्स के द्वारा उस निंदा वाले पत्र के बहुत बाद में लिखा गया है और भेजा गया था, वह पहले ही प्रिंट में था। सुब्बा राव को उनके पत्र जिसमें उन्होंने एम को कटुता से गालियां दी थी और उनको बुरा व्यक्ति सिद्ध किया था का उत्तर उन्होंने वही शब्द उद्धृत करते हुए लिखा है जो उन्होंने पांडुलिपि के पीछे लिखा था और उन्हें बताया है कि इसके आगे का झूठ उससे अधिक अनुपयोगी था। नेक्स्ट प्लीज। और अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे सुब्बा राव को कितना प्रेम करते हैं। और अब गुलदस्ता आता है 1 दिसंबर को मिस्टर अलकार्ड को लिखते हुए, जो लेटर लिखा है मिस्टर अलकार्ड को, जिसके बारे में अभी संदर्भ लिया गया था। वे अडेप्ट पावर का स्पष्ट रूप से दावा करते हैं that he has got all the powers which an adept has. मुझे बहुत खेद है कि मैं शरीर के साथ तुम्हारे से बॉम्बे में नहीं मिल सकता हूँ, किंतु यदि मुझे अनुमति दी गई तो मैं वहीं तुमको सहायता कर सकता हूँ। फिर भी फंड के मामले में वे कहते हैं यह पूरा कयास उल्टा पुल्टा है और कोई नहीं कह सकता है कि वास्तव में क्या कारण है और क्या नहीं। और इसी विषय पर अनेक पत्र इस हामी के हैं जो सब कहते हैं कि उनके पास यह जानने की शक्ति नहीं है कि क्या चल रहा है। He has imposed, he has showed Mr. Alcott that he has got the great powers. पिछले 6 महीनों की अवधि में बिल्कुल उल्टा ऐसा लगेगा, क्योंकि उनको लिखा गया पत्र इसी समय अवधि में था। फर्न को जिसका विवरण वे देते हैं आध्यात्मिक रूप से उनके फर्न के स्तर पर नहीं, सिनेट आध्यात्मिक रूप से उन्होंने कहा है कि फर्न जो है उनके स्तर का नहीं है स्पिरिचुअली, और उन्होंने डींग मारने का साहस नहीं किया हमसे अपनी आध्यात्मिक देवी दृष्टि, किंतु अब सदा के लिए तिब्बत के जादूगरों से तोड़ दिया है उन्होंने संबंध। उनकी अडेप्ट शक्तियां अचानक विशालकाय अनुपात में जग गई हैं और जन्म से ही बहुत सुंदरता से महान होंगी, क्योंकि वे आलकाट को सूचित करते हैं कुछ महीनों से कुल मिलाकर 6 सप्ताह से प्रारंभ में धारणा कंसंट्रेशन सुनिश्चित करने के लिए किसी सीमा तक प्राणायाम आवश्यक था। अब मैं एक योगी हूं, उन्होंने क्लेम किया है। नेक्स्ट प्लीज। अब उनके प्रति आरोप प्रकृति में इतने गहन हैं
किंतु मैंने अपनी मान्यता को इसके आधार पर तुमको विश्वास दिलाने के लिए ये सब कभी नहीं कहा होता। उन्होंने कहा कि उन्होंने मिस्टर सीनेट को बताया कि ये सब हो गया एंड आई वॉज इंसल्टेड एंड टॉर्चर्ड बाई हिम, बट आई हैव नेवर टोल्ड यू अर्लियर, एंड दैट इज बिकॉज he didn't have the basic evidences to prove what he has in mind. Otherwise, you would have misunderstood him. इसलिए एक यह लंबा पत्र और नीचे दिए गए साक्ष्य जिन्हें कृपया सबसे सावधानी से पढ़ें और केवल उन्हीं प्रमाणों के आधार पर अपने निर्णय पर पहुंचें। मुझको जुलाई में लिखे गए पत्र में उन्होंने फर्न केस के झूठ में हमें दोषी ठहराया है। उनका दृश्य का बहाना और हमसे प्रेरणा प्राप्त करने का बहाना उनका 1 दिसंबर का कर्नल ऑलकॉट को लिखे गए पत्र में उन्होंने मौर्य मेरे प्रिय बंधु जो चार्ज किया है कि एक सर्वाधिक अप्रतिष्ठा के साथ वह यह जोड़ते हुए कि उन्होंने उनकी ओर कभी भी एक जेंटलमैन के रूप में नहीं देखा है, क्योंकि उन्होंने दामोदर को उनके हाथों उनको मेरी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी ट्रांसक्रिप्ट भिजवाई थी। एक्चुअली I'll tell in English once. He says in July what he has written to Mr. In that letter he has said that सर्वाधिक अप्रतिष्ठा के साथ ये जोड़ते हुए कि उन्होंने उनकी ओर कभी भी जेंटलमैन के रूप में मास्टर एम के लिए लिखा है कि he has never looked at Master M as gentleman because he has fulfilled the letter from Master M and send it back to Mr. Fern through Damodar. उन्होंने उनकी ओर एक भी जेंटलमैन के रूप में नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने दामोदर को उनके हाथों उनको मेरी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट की ट्रांसक्रिप्ट भिजवाई थी। नेक्स्ट प्लीज। अब उनके प्रति आरोप प्रकृति में इतने गहन हैं कि मैंने अपनी मान्यता के आधार पर तुमको विश्वास करने के लिए कभी नहीं कहा होता। इसीलिए यह लंबा पत्र और नीचे दिए गए साक्ष्य जिन्हें कृपया सबसे अधिक सावधानी से पढ़ें और केवल उन्हीं प्रमाणों के आधार पर अपने निर्णय पर पहुंचें। मुझको जुलाई में लिखे गए पत्र में उन्होंने फर्न केस के झूठ में हमें दोषी ठहराया है। उनका दृष्टि का बहाना और हमसे प्रेरणा प्राप्त करने का बहाना और उनका 1 दिसंबर को का जन्म कर्नल ऑलकॉट को लिखा गया पत्र में उन्होंने मौर्य मेरे प्रिय बंधु को चार्ज किया है। यह एक सर्वाधिक प्रतिष्ठा के साथ ये जोड़ते हुए कि उन्होंने उनकी ओर कभी भी जेंटलमैन के रूप में नहीं देखा, क्योंकि उनका दामोदर ये तो वही स्लाइड है। नेक्स्ट प्लीज। इसे वे कॉन्फिडेंस की अप्रतिष्ठा की ब्रीच मानते हैं, इतनी बड़ी कि मोर्टार द्वारा डरा हुआ था। मोर्टार जो है मेरे ख्याल से उनके ही किसी डिसाइपल का नाम है, मास्टर केएच के। मोर्टार डरा हुआ था कि वह केएच को जानने देता कि किस प्रकार उन्होंने चुना था और उनको लिखे गए मेरे पत्र का दुरुपयोग किया था। केएच एक जेंटलमैन है और कोई इस प्रकार का कार्य करने से घृणा करेगा, ऐसा लिखा है। केएच इज ए जेंटलमैन एंड ही शुड हैव रिफ्रेन्ड फ्रॉम डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैंने ऐसा जानबूझकर किया है और यह नितांत आवश्यक था। ये मैंने पहले से स्पष्ट दिख रही घटनाओं को टालने के लिए किया है। मिस्टर ह्यूम को अपनी ही कारनामों से पलट जाने देने और इस प्रकार उनके द्वारा किए गए
द्वेषात्मक कार्य के प्रभाव और अधिकार से को निरस्त करने के लिए मैंने ऐसा किया है। इस प्रकार ट्रांसक्राइब किए गए पत्र में कॉन्फिडेंशियल होने का संकेत नहीं किया गया था और शब्द में मैं KH ऐसा फर्न के समक्ष किसी दिन कहने का रेफरेंस था। फिर भी इमेजरेबल गालियां, एब्यूजेस और उनकी सत्य की भांति और सभ्य नाराजगी M के षड्यंत्र पर बाद में उनकी स्वीकारोक्ति कि ये शब्द हैं बहुत चकित करने वाली बात है। जैसा तुम देखोगे, मुझे उनके प्रति न्याय करना चाहिए। वे अब तक नहीं जानते हैं कि मुझे ये मालूम है कि उस पत्र के बारे में जो M के द्वारा चुरा लिया गया है और दामोदर के माध्यम से फर्न को भेज दिया गया। संक्षेप में, मिस्टर ह्यूम के पास फर्न को लिखे गए रजिस्टर्ड प्राइवेट पत्र की विषय वस्तु को पढ़ने के साधन थे। मिस्टर ह्यूम के केयर ऑफ भेजा जाना और उनके घर की मेज के ड्रायर में रखा जाना, ये सब कुछ उन्होंने किसी दिव्य से नहीं सीखा है। उनका जो ऑफिस है मिस्टर फर्न का, वो ह्यूम के बंगले में ही था और और चिट्ठियां जाती थी वो केयर ऑफ ह्यूम जाती थी और यही कारण था कि वो चिट्ठियों को जो है वो पढ़ लेते थे, पढ़ सकते थे। चाबियां भी निकाल के चाबियां ही बनवा रखी थी। चाबी उन्होंने पहली बार तो चुराई थी उनके कोट से और किस तरह से उनके पास डुप्लीकेट चाबी थी जिससे वो देख के पढ़ लिया करते थे। नेक्स्ट प्लीज। प्रूफ पूरा है, वे स्वयं इसे फर्निश करते हैं। फर्न बॉम्बे में कैसे थे और वो एक दुष्ट व्यक्ति से मुकर जाने से डरे हुए थे, या तो उन्होंने अपनी प्राकृतिक आंखों से उस पत्र की भौतिक वस्तु देखी थी या अपनी पराशक्ति या आस्ट्रल से देखी। एक्चुअली फर्न जो है, आई वुड लाइक टेल यू, फर्न वॉज another Englishman. He was a young boy and he worked in the same government office in Shimla, and it is indicated that the masters, the senior chiefs, etc., they have brought them together, Fern and Hume, in order to somehow make a party for developing him for the Indian National Congress and all that, because they wanted him to found the Indian National Congress, because then only the government will accept, otherwise it will be rejected if it is done by some Indian person. यदि यह बाद वाला है तो जल्दी से इस योगी में ये साइकिक शक्तियां किस प्रकार विकसित हो गई जो पिछली जुलाई में तुम्हारे या फर्म के आध्यात्मिक स्तर के भी नहीं थे। शीघ्रता से इस पूरे फूल और फल को प्राप्त कर लिया, जबकि हम जैसे जादूगरों को इसे प्राप्त करने में 10 या 15 वर्ष लगता है। नेक्स्ट प्लीज। इसके अतिरिक्त यदि फर्न को लिखे गए इस और अन्य पत्रों को आस्ट्रल लाइट में किए गए हैं, जैसा कि कर्नल ऑलकॉट के पत्र के उत्तर में वाले अपने पत्र में लिखा है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है। ये कैसे हुआ कि अल्मोड़ा के दयालु जीनियस ने, इनकी सहायता से उन्होंने अचानक इस प्रकार की ट्रेमेंडस शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। फर्न को लिखे गए पत्र और फर्न को भेजे गए सभी पत्रों की विषय वस्तु को अच्छी तरह से जानते हैं। एम के पॉजिटिव ऑर्डर्स के अनुसार मिस्टर ह्यूम के घर में रखी डेस्क में से, एम के पॉजिटिव ऑर्डर्स के अनुसार मिस्टर ह्यूम के घर में रखी डेस्क में जब हम दूसरे के बारे में कहने से
उनको पवित्र करते हैं और उनके लिए और अधिक महत्वपूर्ण पत्र को जो मेरे बंधु द्वारा उनको प्रोबेशनरी चेला बनाने के लिए भेजे गए थे, रुथनी कैसल में रखने से प्रतिबंधित कर दिया था और उनको एक सुरक्षित डेस्क में रखने के लिए कहा गया था। लेटर ऑन Mr. Alcott and Master M has ordered Fern to keep these letters away from that castle. And after that, he has corrected himself. He kept in the office in his drawer than in the castle. Next, please. ये पूछताछ जो एम के संकल्प से उत्पन्न हुई थी, ऑलकॉट के मन में सीधे ऑलकॉट को मिस्टर ह्यूम से प्रश्न करने को बाध्य कर देंगी। Actually, Master K.H. feels that Master M is very respectful person for Alcott, and he can't bear this kind of blaming to Master M, so he will certainly give him a right reply. एक यम को के चेला होने के और उनके प्रति उनकी भक्ति लगभग एक पिता और शिक्षक की भांति वे बहुत उचित ढंग से इसे बहुत ऊंचाई से प्रतिबंधित कर देंगे। सीधा प्रश्न कि क्या वे स्वयं एक अत्यंत निम्न कोटि का मानवीय आचरण या उल्लंघन नहीं किया है, जिसके बारे में वे मौर्य के प्रकरण में शिकायत लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा है उनको कि क्या he himself has not done a similar work that he is blaming Master M, और अन्याय पूर्वक जैसा कि तुम देख रहे हो, जिसके लिए उन्हें मेरी स्वीकारोक्ति प्राप्ति थी, क्योंकि यह पूर्व निर्धारित योजना थी। हम लोगों ने पहले ही प्लान कर लिया था कि उनको किस तरह से डील करना है, एंड आई हैव आस्क्ड मास्टर एम टू डू इट। मिस्टर ह्यूम की सच्ची प्रकृति से अवगत कराने के अतिरिक्त एक शर्मनाक स्थिति जो स्वयं विकसित की गई थी, उनकी दूषित भूख, मूर्खता और साधारण कमजोर व्यक्ति जैसे कर्म, यह अंततोगत्वा अच्छा था, जैसा कि आप स्वयं प्रतीत करेंगे। मिस्टर ह्यूम की सच्ची प्रकृति से अवगत कराने के अतिरिक्त एक शर्मनाक स्थिति जो स्वयं विकसित की गई थी, उनकी दूषित भूख, मूर्खता और साधारण कमजोर व्यक्ति जैसे कर्म, यह अंततोगत्वा अच्छा था, जैसा कि आप स्वयं प्रतीत करेंगे। Ultimately, all this was very good because by this he has expressed himself what kind of person he is. That's what he is writing to. हमारे पास कोई जेंटलमैन नहीं है अब सभी घटनाओं पर जो शिमला मानक पर आ सकते हैं। तिब्बत में यद्यपि अनेक ईमानदार और सत्यनिष्ठ लोग हैं, मिस्टर अलकाट के प्रश्न का जो उत्तर आया है उससे नंगे झूठ और मूर्खतापूर्ण दिखावे की दुर्गंध आ रही है, और व्याख्या करने का इतना दयनीय प्रयास कि अकेला यह आचरण कि उन्होंने पत्रों के स्वामी की अनुपस्थिति में उनके संज्ञान के बिना उनके व्यक्तिगत पत्राचार पढ़े हैं, जिसको मैंने मौर्य से तुम्हें पढ़ाने के लिए प्राप्त करने के लिए कहा था। पढ़ने के बाद तुम पत्रों को कृपा करके धर्मगिरी नाथ के माध्यम से वापस बात भेज देना, जो इस सप्ताह मद्रास में होंगे। After writing the letters to Mr. Sinnett, who was in Madras, he has written that after reading these letters, please send it back to me. मैंने एक अशोभित और अप्रसन्नतापूर्ण कटु कार्य किया है, किंतु यदि तुम हमें अच्छी प्रकार से जान लो तो इससे एक महान बिंदु प्राप्त होगा। He is writing to Mr. Sinnett that though he has done a bad work which is not good at looking at, but he has done himself unsatisfactorily, मजबूर होकर उन्होंने किया है। और but you must understand that all this is very essential
कि क्या उचित और अनुचित के तुम्हारे यूरोपियन मानक तुम्हारे अपने विचार के स्तर से कुछ झुका रहे हैं या नहीं। संयोग से तुम स्वयं पाओगे कि सीसी मैसी की प्रवृत्तियां खेदजनक हैं। तुम मजबूर हो गए मेरे जैसे दुखदाई नैतिक विरोधाभास, या ये वर्ड यूज किए हैं मिस्टर ह्यूम ने, दुखदाई नैतिक विरोधाभास, मोरल कंट्रास्ट, पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का है। तो मजबूर हो गए कि मेरे जैसे दुखदाई नैतिक विरोधाभास को या तो हमेशा के लिए स्वीकार करने को या त्याग करने को। आफ्टर रीडिंग these letters, you can either accept me or you can reject me also. हमसे अधिक कोई नहीं पछताएगा अगर ऐसा आपने किया। अगर उनको छोड़ दिया तो कह रहे हैं कि हमसे अधिक कोई नहीं पछताएगा, किंतु हमारे नियम लंबे समय में संसार के लिए समान रूप से बुद्धिमानी पूर्ण और दयापूर्ण सिद्ध हुए हैं, और इसकी व्यक्तिगत इकाइयां विशेष रूप से इतनी भीषण हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उनसे अपने अपने आयुधों से युद्ध करना पड़ेगा। इसे दैट व्यक्तिगत इकाइयां का मतलब यहाँ पे है इंडिविजुअल पर्सन्स, और उनकी जो उनके everybody is special in himself, and perhaps every person has to be fought with special weapons. Next please. यद्यपि हम बहुत अधिक विलंब नहीं होने देंगे, देखिए उन्होंने लास्ट बात कही है अल्टीमेटली, यद्यपि हम बहुत अधिक विलंब नहीं होने देंगे। विलंब का मतलब यहाँ पे ये है कि ही इज आस्किंग हिम टू गो टू लंदन फॉर अ शॉर्ट पीरियड। ही डजंट वांट दैट ही शुड टेक लॉन्ग टाइम। यद्यपि हम बहुत अधिक विलंब नहीं होने देते हैं, फिर भी वर्तमान में जो स्थिति है उसके अनुसार ये आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि तुम कुछ समय के लिए लगभग 1 जून तक घर चले जाओ। जब तुम लंदन नहीं जाते हो और जब तक तुम लंदन नहीं जाते हो और सीसीएम की सहायता से वास्तविक स्थिति की व्याख्या नहीं करते हो और सोसाइटी को स्वयं स्थापित नहीं करते हो, मिस्टर ह्यूम के पत्र इतनी हानि कर चुके होंगे कि ये शरारत निरस्त नहीं हो पाएगी। इस प्रकार तुम्हारी अनुपस्थिति 2 अच्छे उद्देश्यों को प्राप्त कर लेगी, एक सच्ची थियोसॉफिकल अकल्ट सोसाइटी की स्थापना और भविष्य के जीवन के लिए कुछ आशाजनक व्यक्तियों का मोक्ष जो अभी अस्त व्यस्त है। इसके अतिरिक्त तुम्हारी भारत से अनुपस्थिति का प्रभाव भी एक अनिश्चित बुराई होगी। इसके अतिरिक्त तुम्हारी भारत से अनुपस्थित का प्रभाव भी एक अनिश्चित बुराई होगी। दैट मीन्स देयर विल बी सम गुड आल्सो, सम बैड आल्सो, क्योंकि संभवतः इस देश के तुम्हारे मित्र कमी प्रतीत करेंगे और शायद तुम्हारे वापस बुलाने के लिए that in your absence some of your friends in it, they would like you to come back. विशेष रूप से यदि पायनियर अपनी धुन बदल देता है तो पायनियर जो है वो थोड़ा नाराज है उनसे इस तरह के पत्र के लिए। अपनी छुट्टी के समय के कुछ भाग को तुम एक दूसरे थियोसॉफिकल लेखन के लिए उपयोग में ला सकते हो। नेक्स्ट प्लीज। तुम्हारे पास अब विषय वस्तुओं का बड़ा भंडार है, और यदि तुम मेरे द्वारा भेजे गए स्वयं परिणाम निकालने वाले मिस्टर ह्यूम को भेजे गए पत्रों की प्रतियां बनाने की कोई विधि खोज लो तो ये सामयिक सावधानी होगी। उन्होंने एट दैट टाइम तो फोटोकॉपी नहीं होती थी, तो उन्होंने कहा कि यू कैन फाइंड आउट सम वे ऑफ मेकिंग द कॉपीज ऑफ दिस लेटर्स, देन इट विल परहैप्स बी वेरी वाइज थिंग टू रन। ये बहुत उपजाऊ पत्र लेखक हैं। ही इज राइटिंग अबाउट ह्यूम that he is very fertile letter writer, और अब क्योंकि उन्होंने अनेक रुकावटों से अपने को मुक्त कर लिया है,
वे निकटता से प्रेक्षण करेंगे तो बारीकी से वो देखेंगे क्या हो रहा है। इसलिए बहुत सावधान रहना और चौहान की भविष्यवाणी याद रखो। एक्चुअली आई कुड नॉट फाइंड आउट व्हाट वाज द भविष्यवाणी ऑफ द चौहान, but perhaps it is that he has told that in future also many problems will come to the society and you'll have to solve them. So I don't know if someone knows, he can please throw a light on this. And after that, he has written, "Yours sincerely, KH." This is all the letter, and of course, Mr. Hume, as you know, has been writing very bad things to the Master KS since the beginning, but still he was writing letters to him and teaching him also, only because he was supposed to be an organ for a future work, which he had in mind. So, gentlemen, this is all I wanted to read about the letter. And if you have any questions, please try. I say I would like to answer them. Or if you want to add something on this, I do. And if you can tell me what was the forecast of Master Mahachavan, then I would like to know. Thank you, Gautam ji, for your presentation. And I think since आपने हिंदी में ही बोला है, तो मीनाक्षी जी, have you prepared to read in Hindi, or I think this was okay in Hindi itself? Huh? What? नहीं Huh? Yeah. Okay. So no, because normally after English, in English when we study, so Meenakshi ji translates in Hindi, but आज आपने हिंदी में ही बोला है, तो उसके ट्रांसलेशन की कोई वैसी जरूरत नहीं है. So if अगर हमारे कोई बंधु हैं जिनको कोई प्रश्न हो या कोई जिज्ञासा हो या कोई एडिशनल कमेंट हो, तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम. और जैसा कि हमने इस, हाँ विमल जी, यस यस. Yes, so regarding that HX, जो गौतम जी ने बोला HX, तो वो एक्चुअली एलन ह्यूम ही है. एंड वो HX, वो अपना वो ऐसा इनिशियल उन्होंने लेटर्स में लिखते हैं, वो HX ह्यूम के बजाय HX लिखते हैं. तो इसके बारे में अगर आप प्रूफ चाहिए इस बात का, तो इंटरनेट में आप जाइए. आई हैव सेंट यू द मैसेज सर, गौतम सर आपको व्हाट्सएप में मैंने भेजा है. ये ब्लेवित्स्की आर्काइव्स में ऑलकॉट का लेटर है टू ह्यूम, तो उसमें उन्होंने HX ह्यूम ब्रैकेट में HX लिखा है. तो बेसिकली एक्चुअली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज ये वाला लेटर अगर आप ऑलकॉट का पढ़ेंगे तो आपको HX दैट इज ह्यूम का थिंकिंग क्या था और क्या हो रहा था उनके अंदर, दैट यू विल अंडरस्टैंड. बिकॉज ऑलकॉट कहते हैं कि ऑलकॉट के लेटर में कहते हैं ह्यूम को कि जो आपके अंदर हो रहा है कि यू वांट प्रूफ दैट देयर इज दिस महात्मा सदा, यू वांट टू इमर्स योरसेल्फ इनटू थियोसॉफी, बट आपको और ठोस सबूत चाहिए. आपको केवल HPB की बातों से यू आर नॉट गेटिंग कन्विंस्ड, आपको और भी चाहिए और भी चाहिए. तो आपको वो और हम नहीं दे सकते. दैट इज व्हाट द मास्टर्स आर सेइंग कि आप इतने में आपको विल हैव टू बी सैटिस्फाइड. बट ह्यूम इज नॉट, बिकॉज ये जो है कैरियर चेंज की बात है, होल लाइफ चेंज की बात है. तो द पर्सन ह्यूम इज डिबेटिंग कि शुड आई फुल्ली गो इनटू दिस और नॉट. जो ऑलकॉट के साथ हुआ, ऑलकॉट fully gave up his entire career and he changed into, went into theosophy. So so this is interesting. This is the background of what's going on in between this. That's what I understand. Thank you. Thank you Vimal ji. That was very important. Yeah. Anybody else? अगर किसी को कुछ कहना है, अगर नहीं तो देन एनीथिंग आपके मन में गौतम जी, फाइनल कमेंट्स इस पत्र के बारे में कोई कुछ कहना चाहें?
Actually, this letter, of course, among all the letters of the masters, this appears to be uh, very special, because this is the point perhaps when Mr. Hume relation with Mr. KH, Master KH, that was broken, because that was getting unbearable, and his lot of conspiracy against the society also was going on. So और यस, और इसमें ये भी पता चलता है कि आई मीन कैसे जब व्यक्ति बहुत ट्राइज टू बी ओवर स्मार्ट, वो कुछ ना कुछ गलती ऐसी कर देता है जो कि भविष्य में, जैसे ह्यूम ने उसका पेपर लेटर पढ़ लिया या कुछ किया, तो आई मीन दिट क्रिएट्स अ फाउंडेशन फॉर फ्यूचर थिंग्स, जिसमें सत्य जो है वो बाहर निकल के आता ही है। और मास्टर ने भी एपी सिनेट को दिखाया कि कैसे ह्यूम का जो रियल स्टेट ऑफ माइंड है वो क्या है। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, या किसके मन में क्या चल रहा है और कैसे किसी की टेस्टिंग हो रही है और क्या उसमें ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, वो इस पत्र में हमें देखने को मिला। और बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, आपने इस पत्र को शेयर किया हम लोगों के साथ, पार्ट 2 भी। और आई वुड लाइक टू थैंक ऑल आवर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स जिन्होंने ये सेशन ज्वाइन किया। और हेलो इसी, सर। हाँ जी माधवी जी, हाँ शर्मा जी, जी सर एक क्वेश्चन था छोटा सा। हाँ जी पूछिए। वो बीच में आया है कि वन कंसर्न्स द अचीवमेंट ऑफ एडेप्टशिप, वन कंसर्न्स द अचीवमेंट ऑफ एडेप्टशिप, द विक्टर इज द स्ट्रगल फॉर एडेप्टशिप वाज एवर सेल्फ एंड सेल्फ अलोन। हाँ जी, ये गौतम जी आप समझ पा रहे हैं? I think what he tells that he himself was there in his becoming adept, and nobody knows about it. Neither I know nor anybody else. That is, he has made himself and he has imposed as if he is an adept to Mr. Alcott. अच्छा, he Mr. Hume posed as if he has become adept. Hume. हाँ, ओके शर्मा जी, आपको कुछ अपना उत्तर मिला? नहीं, नहीं मिल पाया सर। नहीं, ओके, आपका प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न था वन कंसर्न्स द अचीवमेंट ऑफ एडेप्टशिप, the victor is the struggle for adeptship was ever self and self alone. ओके, इस वाक्य का उत्तर, आई मीन इस जो भावार्थ है, भाव है, वो गौतम जी बताएंगे, क्योंकि मुझे Actually, what I am telling that when he has claimed to Mr. Alcott that he cannot come in physical body, but however, if I'm permitted, I will help. It is all the languages of the masters. So he has imposed that he himself has become a master. And for that, he says he himself is the witness of his becoming master. And nobody else is his guru, nobody else has taught him. That's what he means. ओके, ओके, थैंक यू गौतम जी, थैंक यू शर्मा जी। मेरे पास अभी बुक राइट नाउ है नहीं, तो मे बी वी कैन डिस्कस लेटर। एंड धन्यवाद सभी का बहुत बहुत इस सेशन में जुड़ने के लिए, और इस सेशन को हम लोग समाप्त करने की ओर बढ़ते हैं, सभी के लिए मंगल कामना करते हुए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।
Shanti, Shanti, Shanti. Thank you everyone once again. And the next session of the Indian section will be on Sunday, 6 p.m. So see you later. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you.